آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ برکس ترقی اور عالمی تنظیموں کے اصلاحی مسائل پر بات چیت کے لیے انتہائی اہم، نریندر مودی کا بیان۔ بہرائچ میں بلڈوزر کارروائی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے قبول، چہارشنبے کو ہوگی سماعت۔ وقف ترمیمی بل پر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے اجلاس میں ہنگامہ، رکن پارلیمنٹ زخمی۔ اور طوفان دانا کا اثر، بعض ٹرینیں منسوخ، تلنگانہ میں اگلے 3 دنوں تک بارش کی پیش قیاسی۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ ہندوستان برکس کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور یہ گروپ ترقی اور عالمی تنظیموں کی اصلاح کے مسائل پر بات چیت کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ نریندر مودی کازان میں برکس سربراہان اجلاس میں شرکت کے لیے روس روانہ ہوئے۔ مودی نے کازان کے لیے روانہ ہونے سے قبل سوشل میڈیا پیغام میں کہا، میں وہاں مختلف موضوعات پر وسیع پیمانے پر بات چیت کا منتظر ہوں۔ میں وہاں مختلف قائدین سے ملاقات کا بھی منتظر ہوں۔ برکس گروپ کا 16واں سربراہ اجلاس روس کی صدارت میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایکسلنسی، میں آپ کی مترتا، گرمجوشی بھرے سواگت اور آتتیہ ستکار کے لیے ہاردک آبھار ویکت کرتا ہوں۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ برکس سمٹ کے لیے کازان جیسے خوبصورت شہر میں آنے کا اوسر ملا ہے۔ اس شہر کے ساتھ بھارت کے گہرے اور ایتہاسک سمبند رہے ہیں۔ کازان میں بھارت کے نئے قونصلیٹ کے کھلنے سے یہ سمبند اور مضبوط۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے لیے تشکیل، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی JPC کے اجلاس میں ہنگامہ ہوا۔ آج ایک بار پھر JPC میں شامل برسر اقتدار اور اپوزیشن طبقے کے ارکان کے درمیان زوردار بحث ہوئی۔ اس مرتبہ تو اس بحث نے جارحانہ رخ اختیار کر لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ترنمول کانگریس رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق JPC کی میٹنگ میں BJP رکن پارلیمنٹ ابھیجیت گنگوپادھیائے اور TMC رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی کے درمیان کسی بات پر تلخ بحث شروع ہو گئی۔ میٹنگ کے دوران ہی دونوں قائدین نے جارحانہ رخ اختیار کر لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نوک جھونک نے شدت اختیار کر لی۔ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ اتر پردیش کے بہرائچ ضلع میں تشدد اور فسادات میں ملوث ملزمین کے خلاف بلڈوزر کے استعمال کی مجوزہ کارروائی کے خلاف دائر درخواست کی چہارشنبے کو سماعت ہوگی۔ جسٹس BR گوگوئی اور AK وشواناتھن کی بنچ نے سینئر ایڈوکیٹ CU سنگھ اور دیگر وکلاء کی درخواست قبول کر لی۔ درخواست گزاروں کی طرف سے اس معاملے کی جلد سماعت کی درخواست پر عدالت نے اس معاملے کو 23 اکتوبر کے لیے لسٹ کرنے کی ہدایت دی۔ محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان دانا کی ممکنہ آمد کے پیش نظر مغربی بنگال کے کئی علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ اس طوفان کے 24 اکتوبر کی رات سے 25 اکتوبر کی صبح کے درمیان اڈیشہ کے ساحل کو عبور کر کے مغربی بنگال کے ساحل پر پہنچنے کا امکان ہے۔ اس دوران ہوا کی رفتار 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے، جس کی وجہ سے شدید نقصانات کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق سمندری طوفان اتوار کو جنوبی انڈمان سمندر میں بننا شروع ہوا تھا اور یہ منگل تک بنگال کی خلیج کے اوپر فعال ہو جائے گا۔ ماہرین نے پیش قیاسی کی ہے کہ یہ طوفان 24 اکتوبر کی رات کو اڈیشہ کے ساحل کے قریب پہنچے گا۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ مغربی بنگال میں ہونے والی کالی پوجا سے قبل یہ طوفان شدید نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔ دہلی سمیت ملک بھر میں کئی CRPF اسکولز کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں موصول ہوئی۔ پیر کی رات ای میل کے ذریعے اسکول انتظامیہ کو یہ دھمکی دی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق جن اسکولز کو یہ دھمکیاں ملی ہیں، ان میں ایک اسکول حیدرآباد، 2 اسکولز دہلی کے شامل ہیں۔
वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के करीब एक धमाका हुआ था। हालांकि इस धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन करीबी दुकानों के साइन बोर्ड्स और वहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में खालिस्तानी ग्रुपों के ताल्लुकात की जांच शुरू कर दी है। पीर को पुलिस ने टेलीग्राम ऐप को एक खत भेजा है जिसमें इस चैनल की तफसीलात तलब की गई हैं, जहां से बम की धमकियां दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2024 को गैर आईनी करार दिया गया था। इस मामले में अदालत उज़्मा ने मंगल के रोज सभी फरीकीन की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया है। काबिल जिक्र है कि समाअत के दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मदरसा एक्ट की हिमायत की। अदालत में अपनी बात रखते हुए हुकूमत की तरफ से पेश वकील एएसजी नटराजन ने कहा कि यूपी हुकूमत इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कबूल किया है और इसके खिलाफ कोई अर्जी दाखिल न करने का फैसला लिया गया है। हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया कि जहां तक मदरसा एक्ट का जवाज का सवाल है, तो हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक्ट की हिमायत में दलील पेश की थी और आज भी मदरसा एक्ट को लेकर हमारा वही रुख है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब है जियो और जीने दो। उन्होंने सवाल किया कि क्या आरटीआई खास तौर से मदारिस पर नाफिज होता है। उन्होंने कहा कि क्या हिंदुस्तान में हम कह सकते हैं कि तालीम के माने में मजहबी तालीम शामिल नहीं हो सकती। ये बुनियादी तौर पर एक मजहबी मुल्क है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी सवाल किया कि क्या आपके कौमी मफाद में है कि आप मदारिस को रेगुलेट करें। इन सवालात को उठाने के बाद चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आप इस तरह 700 साल की तारीख को बर्बाद नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि मान लीजिए कि हम हाई कोर्ट के हुक्म को बरकरार रखते हैं, फिर भी बच्चों के वालिदीन उन्हें मदरसा भेजेंगे। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल का दौरा करने वाले तेलंगाना के सरकारी वफ्द ने मंगल को हांगकांग रिव्यू बोर्ड के डिप्टी मेयर जो यूंग टी और बोर्ड के डायरेक्टर्स योग बाकम और दूसरों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर हांगकांग रिवर बोर्ड के अहदेदारों ने तेलंगाना के वफ्द को बताया कि सियोल शहर से गुजरने वाली हांगकांग नदी में गंदे पानी के दाखिले को रोका गया। यह नदी 494 किलोमीटर तवील है, जिसमें 40 किलोमीटर शहर का अहाता किया जाता है। नदी के अतराफ 78 किलोमीटर मोटरसाइकिल ट्रैक तामीर किए गए हैं। नदी की मुकम्मल बहाली का इलाका तकरीबन 57.1 किलोमीटर है। 300 మీటర్స్ మినిమం వచ్చేసి నియర్లీ 60 to 65 మీటర్స్ కొన్ని స్ట్రెచెస్. సో సిమిలారిటీ అనేది దగ్గరగా ఉంది. సో మనం ఎస్టీపీ ప్లాంట్లు కూడా ఇక్కడ చేసినట్టు ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వంలో మోర్ దాన్ 39. तेलंगाना हुकूमत ने दिवाली की खुशियों के मौके पर तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए एक दिन की तातील का ऐलान किया है। जुमेरात 31 अक्टूबर को तातील होगी। यह त्योहारी तातील तुलबा और इंतज़ामिया को दिवाली की तकरीबात में शिरकत करने का मौका फराहम करने के लिए, जो कि रियासत भर में बड़ी जोश व खरोश के साथ मनाया जाने वाला है, एक अहम सकाफती त्यौहार है, इसके लिए दी जा रही है। फिलहाल तमाम तालीमी इदारों में सेमेस्टर असेसमेंट 1 के इम्तिहानात मुनक़िद किए जा रहे हैं, जो कि 28 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। जगतियाल जिले में कांग्रेस के मुकामी लीडर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जगतियाल रूरल मंडल के गांव से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ एमपीटीसी मारू गंगा रेड्डी, जिनकी उम्र 58 साल बताई गई है, नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सुबह के वक्त जब गंगा रेड्डी गांव में मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिसके साथ ही वो जमीन पर गिर पड़े। हमलावरों ने उन पर चाकुओं से वार कर दिया। गंगा रेड्डी के घर वाले उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
మాకు 4 రోజుల పరిచయాలతో ఇంటిలో బాధ్యత సాయం చేసేది ఉంటే ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టుకుని సాయం చేస్తారు. కానీ మీకు మీ పార్టీకి దండం సార్ చెప్పండి, ఇక్కడ మా బతకని ఇక్కడ బతకని ఇంతకాలం అవమానాలకు గురైనా కానీ మేము తట్టుకుంటాం. ఇంతకాలం మానసికంగా అవమానాలకు గురవుతున్నా కానీ మేము భరించినాము. వీళ్ళు భౌతికంగా మమ్మల్ని నిర్మూలించలేదు. ఎందుకంటే चंदानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। कुत्ते का पीछा करते हुए एक नौजवान होटल की तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। महलूक की शनाख्त 23 साला उदय के तौर पर की गई है। उदय रामचंद्रपुरम इलाके के अशोक नगर में रहता था। वो अपने दोस्तों के साथ कल वीवी प्राइड होटल गया हुआ था जब उदय ने तीसरी मंजिल की बालकनी के पास कुत्ते को देखकर इसका पीछा करने की कोशिश की और वो तवाज़ुन खोकर खिड़की से नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये मंजर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फेज 3 के 2375 मिलीलीटर डाई MS पंपिंग मैन में लीकेज हुआ है, जो शहर हैदराबाद को पीने का पानी सरबराह करता है। इसकी रोकथाम के लिए मरम्मत का काम किया जाएगा। ये काम इस माह की 24 तारीख की सुबह 6 बजे से अगले दिन 25 तारीख बरोज़ जुमा शाम 6 बजे तक किए जाएंगे। ओहदेदारों ने बताया कि इन 24 घंटों के दौरान कई आबी ज़खायर वाले इलाकों में पीने के पानी की फराहमी में खलल पड़ेगा। शास्त्रीपुरम, बंडलागुड़ा, भूजागुट्टा, शेखपेट, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, प्रशासन नगर, लालापेट, साहेब नगर, वासवी रिजर्वायर्स, सैनिकपुरी, मौला अली, गच्चीबौली, माधापुर, अयप्पा सोसाइटी, कावेरी हिल्स, स्नेहापुरी जैसे इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर होगी। ओहदेदारों ने बताया कि सुलेमान नगर, गोल्डन हाइट्स, 9 नंबर, किस्मतपुर, पिदाम्बरपेट और दीगर इलाकों में भी पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले अन्नमैया में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले के कालाकड्डा मंडल में कल रात उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और बस ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में दीगर अफराद भी जख्मी हुए। ये बस चित्तूर से हैदराबाद जा रही थी। शहर हैदराबाद के इलाके रामंतापुर में आज एक लड़की ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक DSN माल की 9वीं मंजिल से लड़की ने छलांग लगा दी, जिसकी शनाख्त 24 साला हरिता के तौर पर की गई है। वो इस माल में कस्टमर रिलेशंस एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। मंगल की शाम उसने इंतहाई इक़दाम किया, ताहम फौरी तौर पर खुदकुशी की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। दाना तूफ़ान के पेश नज़र रेलवे हुक्काम ने चौकसी इख्तियार की है। जुमला 41 ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। इस महीने की 23, 24, 25 और 27 तारीख को जो ट्रेनें चलाई जाने वाली थी उनमें से 22 को मनसूख कर दिया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ PRO M श्रीधर ने इस बात का ऐलान किया। ब्रिक्स तरक्की और आलमी तंजीमों के इस्लाही मसाइल पर बातचीत के लिए इंतहाई अहम, नरेंद्र मोदी का बयान। बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल, चाहशंबे को होगी समाअत। वक्फ तरमीमी बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में हंगामा, रुकने पार्लियामेंट जख्मी। और तूफान दाना का असर, 22 ट्रेनें मनसूख, तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।